بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ سنہ عیسوی کے آغاز سے تقریباً 450 برس پہلے شہنشاہ ایران متمدن دنیا کا سب سے زیادہ جلیل القدر در عظیم المرتبت بادشاہ تھا۔ ہندوستان کے مغربی حصہ سے جنوبی یورپ تک اس کی حکومت بھی۔ مصر اس کا باجگزار صوبہ تھا اور یونان اس کا مطلع دال فرمانبردار تمام عالم میں کوئی قوت اس کی مماثل نہ تھی اور کوئی صاحب مال واؤ منال اس سے زیادہ دولت واؤ ثروت کا مالک نہ تھا۔ اس کی شان واؤ شوکت زبان زدام تھی اور اس کی حشمت واؤ فراغت ضرب المثل۔ بائل کے آخری بادشاہ جیشیرز کی لڑکی اسی محبوب علیہ تھی اور فرمان دایانانان واؤ شام کی بیٹیان اس کی حرمیں اور کنیزیں۔ اس کے دارالسلطنت قصر سوسن کے باغات بخت نصر کے گلستان معلق سے زیادہ دلکش تھے اور سر پر حکومت سلیمان کے تحت سے زیادہ خوبصورت۔ اس نے شہر کی گلیوں میں سونے چاندی کے کوچ راہگیروں کی آسان کے لیے نصب کرائے تھے اور اس کے باغات میں بسیرا لینے والوں کو سونے کے پیالوں میں شراب پلائی جاتی تھی۔ اسفند ریار روئن تن کے عروج کا زمانہ تھا کہ سوسن کے شاہی باغ میں ایک ہفت روزہ جشن ہوا، جس کی خصوصیت یہ تھی کہ بجز طلائی ظروف کے کئی دوسری قاف کم برتن اس دعوت میں استعمال نہیں کیے گئے اور شراب کے گلاس ایک بارے مین کے بعد دوبارہ کام میں نہیں لائے گئے۔ اذن عام تھا کہ ہر مہمان طلائی حجام سے ایک بار مستفید ہونے کے بعد اس کو بطور شاہی تحفہ کے اپنے پاس رکھے اور دوبارہ کے ارغوانی سے لطف اندوز ہونا چاہے تو نیا گلاس انتخاب کرے اور اس پر بھی تصرف کرے۔ روسا حکومت اور امرا سلطنت این جشن مسرت میں مدعو تھے۔ 127 صوبوں کے عامل اور ناظم موجود تھے۔ ان کی نشست کے لیے سونے چاندی کی کرسیاں بچھائی گئی تھیں جنہیں میں رہا جواہر جڑائے تھے۔ سفید سیر اور آسمانی رنگ کے پردے کتانی اور ارغوانی ڈوریو سے چاندی کے حلقوں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے بندھے تھے۔ رعایا شہر حاضر تھی اور میوہ دار درختوں کے سایہ میں محلی گدوں پر ہر کے دماغ کو جگ دی گئی تھی۔ شہنشاہ کا حکم تھا کہ ہر ہمان کو اس کی مرضی کے مطابق طعام واؤ شراب لے۔ کوئی نمکین غذاؤں کا طالب تھا، کوئی شیرینی دفواقہ کا دل دادا، کوئی شراب انگوری کی طرف راغب تھا اور کوئی شیر واؤ شربت کا شیدام دعوت میں شائستہ۔ دنیا کے ہر گوشہ سے مہمان آئے ہوں شخص کو اس کی پسند اور فرمائش کے مطابق آپ واؤ طعام دنیا دشوار تھا، مگر شہنشاہ فارس کا حکم تبدیل نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہر مشکل آسان اور ہر محال ممکن ہے۔ تمام حاضرین جشن کو انہین کے مذاق کے موافق محظوظ کیا گیا۔ بادشاہ بذات خاص مہمانوں کی راحت و آسائش کا نگران تھا اور یہ ممکن نہ تھا کہ کسی شے کی احتیاج ہو اور وہ فوراً صاحب حاجت کے روبرو حاضر نہ ہو جائے۔ مظلوم بنی اسرائیل کی بھی ایک جماعت حاضر تھی۔ ان کے آبا و اجداد کو بارینہ بابل ارزکنان سے گرفتار کر کے لایا تھا اور تقریباً ابریس سے وہ عراق میں آباد تھے۔ پہلے کلدانیوں کے محکومت تھے، اب ایرانیوں کے فرمان بردار ہوئے۔ شاہ فارس کی اجازت سے ان کا ایک گروہ وطن واپس گیا اور وہاں افلاس کی سختیاں برداشت کر رہا ہے، لیکن بیشتر تعداد ہنوز عراق میں مقیم ہے اور چند ممتاز مستیاں اس نزہت افطرہ اور دلکشہ باغ میں شہنشاہ کی ممانی سے شرف اندوز ہیں۔ ایران شریعت در دشت کا حلقہ بگوش ہو چکا ہے اور مذہب یہود کی تحقیر کرتا ہے۔ شہنشاہ گلگشت کرتا ہوا اس گوشے سے گزرا جہاں یہودیوں کی جات بادشاہ کے خان کریم سے ذلہ بار ہو رہی تھی اور انواع و اقسام طعام کی تعریف سے رتب اللسان تھی۔ وہ یہود سے مخاطب ہو کر بولا، کیا تمہارا دا بحشت میں ایسی شاندار دعوت تم کو کھلا سکے گا؟ نیویوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ بادشاہ کو چھیڑنا منظور تھا۔ دوبارہ یہی سوال کیا، تب ان میں سے ایک نے عرض کی، اے بادشاہ، ہمارے مالک نے پرہیزگاروں کے لیے جو سامان دعوت مہیا کیا ہے وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ اس کا خطرہ کسی بشر کے قلب میں گزرا ہے۔ اگر ہر خدا وندالی سی ہی دعوت کرے تو ہم کو بہت شرم آئے گی اور ہم کہیں گے کہ ایسی ضیافت تو ہم کو شہنشاہ فارس کے سرکار میں بھی میسر آ چکی ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر خاموش ہوا اور دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجلس شاہی کے حاشیہ نشین عورتوں کے حسن و جمال پر بحث کر رہے تھے۔ بادشاہ انگی گفتگو سننے لگا۔ ایک فریق کہتا تھا کہ حسن و جال میں ایران کی عورت لاجواب ہے، دوسرا کہتا تھا کہ مناسب اعضاء میں تورانی یگانہ روزگار ہے۔ بادشاہ تبسم ہو کر بولا کہ میری کلدانی ملکہ توران اور ایران کی سب عورتوں سے زیادہ حسین اور خوش اندام ہے۔
असालमीन सल्तनत खामोश हुए। बादशाह ने हुक्म दिया कि मक्का किश्ती को शाही ताज पहना कर ऐसी जिसमें हाजिर एन तक रोसा अमरा को इल्म होकर शाह फारिस के पास सिर्फ सोने चांदी की दौलत का अंबार नहीं है बल्कि हुस्न के लाजवाल खजाने का भी वही तन्हा मालिक व मुख्तार है। मलका कसर शाही में अपनी सहेलियों और अमीर जादियों नक की खातिर मदारात में थी कि ख्वाजा सरा इसकी तलबी का हुक्म ये काहम लेकर पहुंचे। वो तमील इरशाद के लिए तैयार हो रही थी कि उसको अपने हाथों पर यकायक चंद सफेद दाग नजर आए। वो खौफ जदा हुई और शर्म व हिजाब का अजर बनाकर शाही मजलिस में अमरी से इनकार कर दिया। कासद महरूम वापस आए तो बादशाह को गुस्सा आया। रफीकों से मशवरा किया कि इस अवल हकमी की किया सतरा मुनासिब है। मुसाहबों ने अर्ज की कि मलका ने सिर्फ बादशाह ही का कसूर नहीं किया बल्कि तमाम अराकीन सल्तनत को दुश्वारियों में फंसाया है। बेगम की नाफरमानी मशहूर होगी और ईरान वाव तवरान की सब होयां अपने शौहरों के इहकाम से सरताबी करने लगी। नगी लहजा करीन इंसाफ है कि इस गुस्ताखी और नमर्दी के पादाश में मलका रश्ती को ये सजा दी जाए कि वो दोबारा कभी हुजूर के जाल जहान आरा की जियारत न कर सके और इसका मनसब की हसीन और फरमानबरदार बाकरा को इनायत किया जाए। बादशाह ने ये राय पसंद की और बदनसीब मकमहल से खारिज कर दी गई। दावत खत्म हुई, जहान रुखसत हुए। बादशाह को मलका दिश्ती की याद ने बचपन किया। वुज़रा और अमरा ने इसकी जानिशीनी के लिए हसीन व जमील तरहदार और नाजुक अनदाम लड़कियों की जुस्तजू शुरू की। ईरानी, तौरानी, कलदानी, शामी, मिस्री, हिंदी, यूनानी, यमनी, सैसतानी, हर मुल्क व मिल्लत की मुंतखब साहब जाल लड़कियां कसर सोसन में जुमा की गईं ताकि बादशाह एक मलका उनमें से पसंद करे। इस हुस्न व जमाल के परी खाना में एक यहूदी की लड़की भी थी जो तारीख के सफ़हात पर असतरा के नाम से मशहूर है। बेहतर स्टार और सितारा एक ही हम मानी लफ्ज की मुख्तलिफ शक्लें हैं और ये लक़ब असकु शाहमन की सरकार से अता हुआ था, वरना उसका असली नाम हदना था। यकसनी में वालिदैन का साया आतफत सर से उठ गया था। रुदाई नाम इसके छने पर रश और तालीम व तरबीत की थी। हुस्न वाव जमाल खुदादाद था। नाज वाव करिश्मा फारिग अलबाली ने सिखाया था। इल्म वाव हुनरचा का रहीन मिन्नत था। मुमलिकत ईरान में हसीन लड़कियों की जुस्तजू शुरू हुई तो मुजरों ने दरबार शाही में इस यतीम का हुलिया भी पेश किया। सरकार से मुआयना के लिए तलब हुई। तशफ़ीक़ चचा आतिश परस्तों से पैवनद नाजायज समझता था, लेकिन शाही फरमान से सरताबी की मुजाल ना थी। रुखसत के वक्त लड़ूकी को नुमाइश की कि वो दरबार में अपना नसब जाहिर न करने ताकि अराकीन हुकूमत को ये पता ना चले कि बनी इसराइल की लड़की भी किस्मत आजमाई के लिए हुजूर सुल्तानी में पेश की गई थी। ख्याल ना था कि नज़र इंतखाब उसी पर पड़ेगी और लड़की हाथ से निकल जाएगी, मगर तकदीर का लिखा पूरा हवा फारिस का शहनशाह इस ताजेदार हुस्न का गुलाम हो गया और शाहाना मरासिम के साथ वो खास महल के मरातिब और मुनासिब बे सरफराज हुई। चंद रोज के बाद मर्दखानी ने बादशाह के दो मुलजमूनों एक गैर मानूस जबान में गुफ्तगू करते सुना और दरियाफ्त कर लिया कि बादशाह के कत्ल के लिए साजिश हो रही है। इसने मलका बेहतर के मारिफत ये खबर बादशाह के सिम मुबारक यक पहुंचाई। तहकीक व तफ्तीश से राज आशकारा हो गया और साबित हुआ कि वो दोनों मुलाजिम शहनशाह को जहर देने की फिक्र में थे। साजिश करने वाले हलाक किए गए और ये किस्सा रोजनामचा शाही में दर्ज हुआ। मर्द खाई को इस इंकशान से कुछ फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन बेहतर की इज्जत महल में पहले से दुरचंद हो गई। अब तकदीर का खेल देखा है। अरज रूम का एक हज्जाम अपने मौरूसी पेशा की आमदनी बसर औकात के लिए नाकाफी पाकर तलाश माश में ईरान आता है। फौज में तलाजमत करता है और चंद ही रोज के बाद अजीम के मुकाबला के लिए रवाना कर दिया जाता है। जंग में शिकस्त होती है, जाम जख्मी होता है और उसके हमराही फरार हो जाते हैं। जख्मों से चोर निशस्त व बर्खास्त से माजूर भूख प्यास की तकलीफ से मुस्तरिब हाल है। इत्तेफाक से मर्द खानी का इधर गुजर होता है। मजरू सिपाही को मैदान का रजार मैन बयार वाव डगार देख कर दर्दमंदी से इमदाद करता है। सिपाही की जान बचती है और वो अपने खून से हस गुलामी लिखकर मरू खानी के हवाला करता है। थोड़े ही अरसा के बाद सितारा इकबाल तुलू हवा गौवर में लल मिला। जंगल में एक गरानबहा दफीना दस्तयाब हो गया। सोना सतार एवब और काजी अलहाजात है। सूरत बदल गई। आदात व अतवार में फर्क आया। दौलतमंद मज्जा और साहब वजाहत होकर दार अल सल्तनत में आया। माल व मिनाल की शोहरत हुई। बादशाह ने दरबार में तलब किया, दसत रास्त का वजीर बनाया और मुल्क व माल का मुख्तार कर दिया। मुमलिकत ईरान में
हामान की वजारत की होम भी और तमाम अराकीन सल्तनत को इसकी तज़ीम व तकरीम का हुक्म हुआ। अख्तर इकबाल मिराज कमाल पर था कि कसर शाही के करीब मर्द खाई से नजर दो चार हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहचान लिया। कोई मुस्कुराया और किसी की आंख बची हुई। एक ने तज़ीम का हक अदा न किया, दूसर को नदामत हुई तैश आया। गुस्सा बढ़ा और नफरत पैदा हो गई। अफशा राज के खून से मुन बोले, आका की हलाकत दिल में ठानी और इसके सारे खानदान, कबीले और कौम के नेस्त व नाबूद करने का अज़्म बालजज़म कर लिया। दरबार शाही में हाजिर होकर दसत बस्ता अर्ज की, हुजूर की मुमलिकत के सब सूबों में एक कौम पर आगनदा है, जैसे के दस्तूर हर कौम से नराले हैं और बादशाह के कवानीन नहीं मानते हैं। सो उनको रहने दुनिया बादशाह के लिए फायदा मंद नहीं है। अगर मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए। बादशाह ऐश व इशरत में मदहवश था। हाथ से अंगूठी उतार कर उस यर के हवाला की और फरमाया कि वो कौम ज को बख्शी जो मुझे अच्छा मालूम हुआ, अस पर अमल करी। तेज दसत मुंशी तलब हुए सूबा के हुरूफ और कौम की जबान में नवाबों, आमिलों, नाज़मों और सरदारों के नाम बादशाह की महर खास से फरमान जारी हुए कि 12वीं महीना यानी माह आज़र की 13वीं तारीख को सब बहुती किया जवान, किया बड़े, किया बचे, किया औरतीन एक ही साथ में हलाक और कत्ल कर दिया जाएं और इनका माल व सबाब लौट लिया जाए। हर कारे फरमान लेकर रवाना हुए और हामान बादशाह के साथ मेनूशी को बैठ गया। कत्ल आम का ऐलान शाये होते ही असर सोसन में सन्नाटा छा गया और मुमलिकत के हर गोशा में सफ मातम बिछ गई। हर सूबा में यहूदियों ने मातम और नोहा शुरू किया। खाना पीना छोड़ा और गिरिया वजारी करने लगे। मर्द खानी ने अपने कपड़े चाक किए, टमाट पहने सर पर राख डाले, शहर के चौक में मुलबंद आवाज से फरियाद करने लगा। शाही फाटक के अंदर किसी अफसुर्दा और मगमूम को कदम रखने की इजाजत न थी। असलाए महल तीक रसाई मुहाल थी। ख्वाजा सराऊ ने मलका को खबर दी कि मर्द खाई टाट पहने नालावाव फरियाद कर रहा है। मलका अमगीन हुई, दरियाफ्त हाल के लिए मुतबिर कासद भेजे। इन्होंने सारा किस्सा मालूम करके मलका को सुनाया और इस फरमान की एक नकल भी दिखलाई जो यहूद के कत्ल आम के लिए बादशाह के हुक्म से जारी किया गया था। लका मुतहिर मुतरदो और मतफक्कुर हुई, लेकिन लाचार और बेबस थी। ईरान का कानून था कि जो कोई मर्द हो या औरत बेतलब बादशाह की खलवत में जाए वो फौरन कत्ल किया जाए। सरा इसके जसके लिए बादशाह सोने का असा उठाए कि वो जिंदा छोड़ दिया जाए। कई रोज से बादशाह ने इस्तर को याद नहीं किया था और उसकी मुजाल ना थी कि बगैर बुलाए इसके हुजूर में चली जाए। उसने मर्द खानी को इस कायदा की इत्तला दी। जवाब मिला कि तो अपने दिल में ये ना समझ के सब यहूद में से तो बादशाह के महल में महफूज रहेगी। अगर तूने इस वक्त खामोशी इख्तियार की तो यहूदियों की निजात का खुदा कोई और वसीला पैदा करेगा, गिर तो जरूर हलाक हो जाएगी। इस्तर ने चाके पास पैम भी जाके सोसन में जितने यहूदी हैं वो सब एक जगह के वो जुमा होकर 3 दिन इबादत करें और शब वरूज साइमा रहें। महल में मुल्क भी माँ अपनी सहेलियों देखकर दर्दमंदी से इमदाद करता है। सिपाही की जान बचती है और वो अपने खून से हज गुलामी लिखकर मरू खानी के हवाला करता है। थोड़े ही अरसा के बाद सितारा इकबाल तुलू हवा गोवर में अलमिला जंगल में एक गरानबहा दफीना दस्तयाब हो गया। सोना सतार एवब और काजी अलहाजात है। सूरत बदल गई, आदात व अतवार में फर्क आया। दौलतमंद मज्जा और साहब वजाहत होकर दार अल सल्तनत में आया। माल व मिनाल की शोहरत हुई। बादशाह ने दरबार में तलब किया, दसत रास्त का वजीर बनाया और मुल्क व माल का मुख्तार कर दिया। मुमलिकत ईरान में हामान की वजारत की होम भी और तमाम अराकीन सल्तनत को इसकी तज़ीम व तकरीम का हुक्म हुआ। अख्तर इकबाल मिराज कमाल पर था कि कसर शाही के करीब मर्द खाई से नजर दो चार हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहचान लिया। कोई मुस्कुराया और किसी की आंख बची हुई। एक ने तज़ीम का हक अदा न किया, दूसर को नदामत हुई तैश आया। गुस्सा बढ़ा और नफरत पैदा हो गई। अफशा राज के खून से मुन बोले, आका की हलाकत दिल में ठानी और इसके सारे खानदान, कबीले और कौम के नेस्त व नाबूद करने का अज़्म बालजज़म कर लिया। दरबार शाही में हाजिर होकर दसत बस्ता अर्ज की, हुजूर की मुमलिकत के सब सूबों में एक कौम पर आगनदा है, जैसे के दस्तूर हर कौम से नराले हैं और बादशाह के कवानीन नहीं मानते हैं। सो उनको रहने दुनिया बादशाह के लिए फायदा मंद नहीं है। अगर मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए। बादशाह ऐश व इशरत में मदहवश था। हाथ से अंगूठी उतार कर उस यर के
हवाला की और फरमाया कि वो कौम को बख्शी जो मुझे अच्छा मालूम हुआ अस पर अमल करी। तेज दसत मुंशी तलब हुए सूबा सूबा के हुरूफ और कौम कौम की जबान में नवाबों, आमिलों, नाज़मों और सरदारों के नाम बादशाह की महर खास से फरमान जारी हुए कि 12वीं महीना यानी माह आज़र की 13वीं तारीख को सब बहुती किया जवान, किया बड़े, किया बचे, किया औरतीन एक ही साथ में हलाक और कत्ल कर दिए जाएं और इनका माल व सबाब लौट लिया जाए। हर कारे फरमान लेकर रवाना हुए और हामान बादशाह के साथ मेनूशी को बैठ गया। कत्ल आम का ऐलान शाये होते ही पसर सोसन में सन्नाटा छा गया और मुमलिकत के हर गोशा में सफ मातम बिछ गई। हर सूबा में यहूदियों ने मातम और नोहा शुरू किया। खाना खाना पीना छोड़ा और गिरिया वजारी करने लगे। मर्द खानी ने अपने कपड़े चाक किए, टमाट पहने सर पर राख डाले शहर के चौक में मुलबंद आवाज से फरियाद करने लगा। शाही फाटक के अंदर किसी अफसुर्दा और मगमूम को कदम रखने की इजाजत न थी। असलाए महल तीक रसाई मुहाल थी। ख्वाजा सराउन ने मलका को खबर दी कि मर्द खाई टाट पहने नालावाओ फरियाद कर रहा है। मलका अमगीन हुई, दरियाफ्त हाल के लिए मुतबिर कासद भेजे। इन्होंने सारा किस्सा मालूम करके मलका को सुनाया और इस फरमान की एक नकल भी दिखलाई जो यहूद के कत्ल आम के लिए बादशाह के हुक्म से जारी किया गया था। लका मुतहिर मुतरदो और मतफक्कुर हुई लेकिन लाचार और बेबस थी। ईरान का कानून था कि जो कोई मर्द हो या औरत बेतलब बादशाह की खलवत में जाए वो फौरन कत्ल किया जाए। सरा इसके जसके लिए बादशाह सोने का असा उठाए कि वो जिंदा छोड़ दिया जाए। कई रोज से बादशाह ने इस्तर को याद नहीं किया था और उसकी मुजाल न थी कि बगैर बुलाए इसके हुजूर में चली जाए। उसने मर्द खानी को इस कायदा की इत्तला दी। जवाब मिला कि तो अपने दिल में ये न समझ के सब यहूद में से तो बादशाह के महल में महफूज रहेगी। अगर तूने इस वक्त खामोशी इख्तियार की तो यहूदियों की निजात का खुदा कोई और वसीला पैदा करेगा, गिर तो जरूर हलाक हो जाएगी। इस्तर ने चाके पास पैम बीजा के सोसन में जितने यहूदी हैं वो सब एक जगह के वो जुमा होकर 3 दिन इबादत करें और शब वरूज साइमा रहीं। महल में मुल्क भी माँ अपनी सहेलियों के 3 रात दिन रोजा रखेगी और उसके बाद बादशाह के हुजूर में जाएगी, चाहे इस तसव्वुर की सजा में इसकी जान क्यों न जाए। रियाजत व इबादत से फारिग होकर हसब वादा तेरे दिन इस्तर शाहाना लिबास पहनकर और अपने हुस्न आलम अफरोज में जेवर से 4 चांद लगाकर बादशाह की खलवत खास में बगैर तलब किए हाजिर हुई। कियानी ताजेदार तख्त सल्तनत पर कसर के मुकाबिल जीनत बख्श था कि बारगाह में इस्तर नजर आई। सन रासा इसकी तरफ बढ़ाया। इस्तर ने तस्लीम की। इरशाद हुआ, क्या चाहती है और किस चीज की दरखास्त करती है? अगर आधी सल्तनत मान गए तो वो थी तुझको दे जाएगी। अर्ज पर अदाज हुई कि बादशाह माँ अपने वजीर हमा के उसकी महफिल खास में रौनक अफरोज हूँ। बादशाह ने मंजूर किया। सामान जश्न पहले से तैयार था। शाह वाओ वजीर मलका के कसर में ने गलबों से शाद काम हुए। आलम सरवर में बादशाह ने मुकर्रर इरशाद किया, तेरी क्या दरखास्त है? आधी सल्तनत तक तेरी आरज़ू पूरी की जाएगी या? मलका ने कहा, ये मेरा सवाल ये है कि कल बाहरशाह और वजीर मेरे जश्न में हैं। इस वक्त अर्ज करूंगी। हामान मलका के कसर से शादान वाओ फरमान निकला और अपने हमराजों से ये तफाखर कहने लगा कि बादशाह ने मुझको सब अमरा और अराकीन से ज्यादा इज्जत दी है और मलका को मुझसे इतनी मोहब्बत है कि सिवा मेरे बादशाह के साथ किसी को अपनी मजलिस में आने ना दिया और कल के लिए फिर दावत दी है। अब मेरी तकदीर का सितारा बुलंद तर होने वाला है। हवाई तिले बनाता और अपने बखत पर नाज करता शहर में पहुंचा तो मर्दखाई की सूरत नजर आई। ताउस नाचते नाचते जब अपने कदमों की तरफ देखता है तो शर्मिंदा हो जाता है। मिस्र के कदीम बाशिंदे दावत के बाद इंसानी हड्डियों का एक ढांचा मेहमानों के सामने पेश करते थे और इससे ज़ियाफत का लुत्फ फरामोश हो जाता था। उसी तरह मर्दखानी को टमाट पहने और सर पर खाक डाले देखकर इसके गुस्सा की कोई हद न रही। जीन और दावत की मशरत फरामोश करके दोस्तों से सलाह की कि 50 हाथ ऊंची सलीब तैयार की जाए और कल बादशाह से इजाजत लेकर मर्दखाई को सूली दी जाए ताकि राहत व फरागत से मलका के जश्न में शरीक हो। ये तजवीज़ संजय बंद की हुक्म की देर थी। सूली तैयार हो गई। दौरात कसर सोसन में अक्सर अशखास को जागते गुजरी मर्दफाई और इसके भाई बंद ये को मालूम हो गया था कि बेहतर ने अपने हम कौमों की सिफारिश नहीं की बल्कि बादशाह को अपने महल में जश्न के लिए मदऊ किया है। वो अपनी जिंदगी से मायूस थे और हयात मुस्तयार की बकिया घड़ियां तात वस्तफार में सिर्फ करने के लिए बेदार रहे।
जश्न के इंतजाम में थी। दिल में आह थी और लब पर वाह वाह, सीना जलता था, कलीजा फनका जाता था। मगर अनवा वरसाम की शराइन और गुज़नत फराहम करने का बंदोबस्त कर रही थी। असलाए बिस्तर राहत पर कदम रखने की मोहलत न मिली। हामान शहर में वो यूनी मर्दम शुमारी कर रहा था और जला दो को तलकीन कर रहा था कि जिस वक्त मर्द खाई सलीब पर आवेजान हो, उसी वक्त दारुल सल्तनत का हर एक यहूदी बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत पर वो आलम से नेस्त वाओ नाबूद कर दिया जाए। इस जोश वाओ खुरूश में नींद की ना या दिखती ना जरूरत। शहनशाह ईरान को भी इस रात नींद न आई। असको कर थी कि हामान की तरफ मलका की नजर इल्तिफात ज्यादा हो गई है। वो दावत खास में मदऊ किया गया है और इसका अंजाम खतरनाक मालूम होता है। गर्दे बदलते देर हुई और नींद गमजा माशौकाना दुखिलाती रही। तारीख नवीस तलब किए गए कि अगले अफसाने बादशाह को सुनाएं और खातिर मुबारक को तसल्ली दें। किताब खोली गई तो इत्तिफाक से पहली नजर इस हकायत पर पड़ी कि शहनशाह फारिस को इसके मुलाजिमों ने जहर देने की साजिश की थी, मगर मर्द खाई इस राज से आगाह हो गया और उसने मलका की मारिफत बादशाह को खबरदार कर दिया। शहनशाह ने यह किस्सा सुनते ही हाजिरीन मजलिस से पूछा कि इस हुस्न खिदमत के सिला में मर्द खानी की क्या इज्जत व हुर्मत की गई। जवाब मिला, कुछ नहीं। बादशाह नाराज होकर उठ बैठा। सुबह का सोयरा करीब था और हामान बारगाह के दरवाजे पर हाजिर था ताकि शहनशाह के बरामद होते ही मर्द खानी को सूली देने की इजाजत हासिल करे और सरायरियों के खून की नदियां बहा के अपने कलीजे को ठंडक पहुंचाए। बादशाह ने इसकी सूरत देखते ही दरियासत किया। जैसे की तज़ीम बादशाह करनी चाहता है, उस शख्स से किया सुलूक किया जाए। अम्मा सिजा के बादशाह को गालिबन उसके साथ कुछ सुलूक मंजूर है। जवाब दिया कि उस शख्स के लिए जैसे की तज़ीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है और शाही ताज जो इसके सर पर रखा जाता है लाया जाए, और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के से आली नसब अमरा में से एक के हाथ में सुपरिद होता कि वो लिबास उसको पहनाया जाए जिसकी तज़ीम बादशाह को मंजूर है, और शाही घोड़े पर सवार करा के वो शहर के शारे आम पर फिराया जाए और मुनादी की जाए कि जिस शख्स की तज़ीम बादशाह करनी चाहता है, इससे ऐसा सुलूक होता है। बादशाह ने फरमाया, जल्दी कर और शाही लिबास और घोड़ा लेकर मर्द खाई बहूदी के पास जा। जो कुछ तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। हुक्म हाकिम मरग मुफाजात। हामान सलीब की इजाजत लेने आया था। वहाँ तज़ीम वाव तकरीम अलिफ फरमान ने मादर हुआ, इरशाद की तमील की और निहायत आरज़दा वर नजीदा होकर अपने घर गया का फरमान सादिर हुआ। अरे अपनी बीवी से ये दर्दनाक किस्सा बयान कर रहा था कि बादशाह के ख्वाजा सरा आ गए और मक्का शहर के जश्न की याद दुहाई की। मर्दानी की तज़ीम का गम, सलीब के सुनसान रहने का रंज, यहूद के कत्ल में देर होने का जश्न से किया खाक दिलचस्पी होती। गिर हाजिरी लाजिम थी। कलीजे पर फिर रखकर मक्का की ज़ियाफत में बादशाह के साथ जाम शराब से गम गलत करने लगा। शहनशाह का दाग 12 उसे गर्म हवा तो इससे फिर पूछा, मक्का तेरा क्या सवाल नाब मंजूर होगा, तेरी क्या दरखास्त है, आ रही सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। वरा मलका हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई और रज की, अगर मैं जहां पनाह की नजर में मकबूल हूं तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो। मेरी दरखास्त सिर्फ ये है कि मेरी कौम मुझे को ले, क्योंकि हम लोगों के कत्ल व हलाकत का फरमान जारी हो चुका है। बादशाह ने पूछा, वो कौन है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की। इस्तर ने कहा, ये वो मुखालिफ और दुश्मन यही बेबत हामान है। बादशाह को तैश आया, गजबनाक होकर महफिल से उठा और बाग में ठहरने लगा। अम्मा मलका से अपनी जान बख्शी की दरखास्त और तहनत का पाया थाम कर आजजी करने लगा। बादशाह की आंख उठी, ख्याल गुजरा कि हामान मुल्क के साथ गुस्ताखी कर रहा है। मुलाजिमों को इशारा किया और हामान फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। एक ख्वाजा सरा ने अर्ज की के 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है जिसको हामान ने मर्दखानी के लिए तैयार कराया था। इरशाद हवा के उस पर टांग दो। चाक अंदर चादर पेश की पुरानी कहावत सही हुई। उसी सलीब पर हामान आवेजान किया गया। वजारत की अंगूठी हामान की अगली से उतार कर मर्दखानी को बनाई गई और मकतूल वजीर का कल माल व असबाब भी उसी को इनायत किया गया। यहूदियों के कत्ल का फरमान मनसूख हुआ और 70 का मुबार नाम तारीख यहूद के सफ़हात पर हमेशा के लिए ताबां व दरख्शां हो गया। माँ आज़र की 3 अरादरदार तारीख को आज तक कसा आलम के यहूदी इस मुमलके से निजात की यादगार में ईद मनाते हैं और मुल्क मुस्तर की
कौम परस्ती पर अकीदत के मोती निसार करते हैं। ऐसी तरह की वीडियो और वकिया को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमीन या रब्बल आलमीन।